اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا اور کچھ ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے شام تک پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ کریں. اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کے سوالات سے متعلقہ ہے. یہ ضروری چیز ہے, اس کو چلائیے جی پلیز. جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس. لازمی بات ہے, بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. اس ملک کا ایک قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے, پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے, شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے تھرڈ سٹیج پہ, فائر آرم کب یوز کرنا ہے اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے کسی بھی ہنگامے کی صورت میں, کسی بھی چیز کی صورت میں. اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جمہوریت بھی ہے ان جلوسوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت پسندی بھی ہے. یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں. آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے سوٹے کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے گلولوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے, اور اس ملک کے قانون کی حفاظت کا وعدہ کر لیا. یہ ہے وہ قانون جس کے ذریعے اگر ہم پہ پتھراؤ ہوگا یا ہوا, اور میں پھر کہتا ہوں اگر ہم پہ زیادتی کی گئی, اس ملک کی وردی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے, غلیلوں کے ساتھ پتھر برسائے گئے, پتھراؤ کیا گیا, تو قانون کے مطابق ایک سٹیپ آگے نہیں ہوگا, قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور اگر اس کیس میں بھی کسی پولیس والے نے بڑھ کے زیادتی کی ہے اور اس کی کوئی ویڈیو سامنے ہے, اس کا کام سی ایم صاحب کا حکم ہے, اس کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی. آگے چل لیجیے جی. چلائیے. یہ ڈرائیور ہے جس نے گاڑی چینج کی ہے. میں اپنے دوست کے کوارٹرز کے سامنے اس کو ملنے کے لیے گیا ہوں, تو وہاں پہ ہم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم کھانا کھانے چلتے ہیں, کیونکہ ہم نے گاڑی بھی وائس روڈ سے خریدا تھی. جیسے ہم لنکن کالونی سے مارکیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے, تو وہ بندہ گر جاتا ہے. ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی, وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں جو ہے وہ کیا. وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا. تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نہیں پڑی, تو پھر ہم اس سے سیدھا سروس ہاسپٹل لے کے آئے. وہاں پہ ہم نے کی اسٹریچر پہ اس کو اندر لے کے گئے. وہاں پہ ڈاکٹرس نے ہمیں بولا کہ اس کی ڈیتھ, اس وجہ سے ہم وہاں سے جو ہے نکل آئے ہیں. ہم نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی ہے اور سیدھا ہم آئے ہیں وہاں پہ, ہم نے اپنی گاڑی خریدی ہے اور گاڑی خرید کرنے کے بعد ہم واپس یہ تمام چیزیں صرف اس کے بیان پہ نہیں کہ آپ کہیں کہ پولیس کسٹڈی میں ہے, مارا گیا ہوگا, اس کو ٹاپ لیول پہ خود پوچھا گیا ہے. اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی تشدد نہیں ہے. اس کے بعد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا, ان کی گرفتاری طے چکی ہے. آج یہ تمام ثبوت اس مظلوم شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی کارروائی مکمل کی جائے گی. آئی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ سر ایک سیکنڈ کائنڈلی, بالکل آپ کی بات پہ آتے ہیں, کائنڈلی ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا, آپ سوالوں کے جواب مل جائے گا. اور جی ٹھیک ہے, یہ آپ کنڈکٹ کرائیں گے نا منسٹر صاحب؟ میں کر
خیر یہ ویڈیو یہ فائدہ نہیں ہے, یہ ساری جو ہے یہ ساری آڈیو جو ہے شیئر, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, رہنے دیں. اس کو آپ کو دکھا دیں گے, اس کو آپ کو یہ شیئر کر لیں ساری میڈیا کے. آگے چلیں جی, آگے چلیں جی. آپ کو مطلب یہ ہے, یہ گاڑی باہر آئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ گاڑی بھی باہر موجود ہے, یہ گاڑی بھی آئی ہوئی ہے, یہ گاڑی بھی موجود ہے. اس کے ساتھ آگے چلیے جی, ادھر رش کریں تاکہ سوال. یہ وہ خون ہے اس مظلوم شخص کا جس کو غلط مقاصد کے لیے ابیوز کیا گیا. یہ اونر آف وہیکل ہے. میں پھر کہتا ہوں ان میں کوئی بھی کرنے کی ہم سازش کسی پہ نہیں ڈال رہے. آگے چلیے جی. امپورٹنٹ سن لیجیے گا. اچھا جی, میں آپ کو وائس میسج کے اوپر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آپ سارے اسٹاف کو جو خاص طور پہ اگر موجود ہیں ان کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں. ایک تو یہ جو ڈالا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے جوید کیانی کا. اگر کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا جی جوید کیانی کا ڈالا ہے, وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے جو ہماری کمپنی کے اونر ہیں, ان کے وہ شمنی ہے یا آپ نے کہنا عزیز ہے. تو یہ نکلا کمپنی کے نام پہ ہے, ان کا کمپنی کا ڈرائیور ہے جو جانتے ہیں جو چلاتا ہے. اور یہ دفتر کے دفعہ ہمارے کھڑا ہوگا, کئی دفعہ کھڑا ہوتا ہے. اور کیا نام ہے, باقی تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا کرنا پڑا. اس میں یہ ہے کہ ٹی وی سیکورٹی سے یہ بننا وہ جان چھوڑ سکتی ہے آپ, کیونکہ وہ ہے بھی ہونی چاہیے. تو یہ اسٹیٹمنٹ رکھنی ہے اور ساروں کو بتا دیں کوئی یہ نہیں آگے منہ چھوٹے جی آپ اسٹیٹمنٹ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. باقی یہ اسٹاف اب آپ کو ایک چھوٹی سی آڈیو سنائی جائے گی, یہ بھی آپ کو شیئر کی جائے گی. ایک چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ آڈیو. ڈرائیور کی سم نکالنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہ بھی ہم آپ کو اس کا بند کر دیجیے, ٹھیک ہے. سوال پوچھنے کے لیے آپ ایک ایک سوشل میڈیا کی چیز کا جواب. اب ایک سیکنڈ پہلے صرف ایک چیز ہے, پہلے ایک سیکنڈ سننا. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. دیکھیں اب دو چیزیں پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک جو اس کی فیملی ہے, اس کو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کے جائیں گے, ان کے والد صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ جو مرضی کہیں, اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی, اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے, آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتہ تھا ساری چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس آئی جی صاحب خود جائیں گے, سارے ثبوت ساری ایویڈنس سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا جو ایلیگیشن لگائے, میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے, میرے ساتھ بھی جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے. اچھا اب آ جائیں فراز, ایک ایک کر کے سوال کر دیں. میرا یقین کیجئے, میں آپ تمام لوگوں سے جتنے بجے تک آپ بٹھائیں گے میں بیٹھوں گا. آپ سب ایک برابر ایک ایک کر کے فراز سے شروع. یہ فراز صاحب سے ایک سیکنڈ, فراز صاحب سے شروع بھائی, ایک سیکنڈ سر دیں گے. یہ جو مقدمہ کیا گیا تھا, یہ 302 کا مقدمہ کیا گیا تھا, کیا اب 302 اس کو حذف کر کے 322 پہ آزاد کریں گے یا اس کا 322 کا نام کرنا جو ہوگا؟ نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے سر, نمبر 2 وہ جو راجہ سپریم میں جا کے ڈاکٹر یہاں پہ راجی کو لیڈرز کو جو بات بتائی ہے چھاتے چھپائیے, کیا 201 کا ان کے حق نہیں ہوتا؟ آپ کے بالکل دیکھیے 2 سوال ہیں اور بند کر دیجیے. پہلی بات میری سارے بھائیوں سے درخواست ہے, سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا, چاہے شام تک بٹھائیں چاہے دفتر آ جائیں. اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم بات نہیں کریں گے, اب ہم کھل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ سامنے بات کریں گے. جب کوئی وقوع ہوتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے, وہاں ہنگامہ ہوا ہوتا ہے, لوگ زخمی بھی ہوئے ہوتے ہیں, 13 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں,
जिनमें DSP के सर पे पत्थर लगते हैं, कंकशंस होती हैं, CT स्कैन्स होते हैं। उसमें जब ये इत्तला आती है एक शख्स की हलाकत हो गई है तो लाजिम बात है 302 लगना चाहिए, चाहे वो पुलिस से हुई हो या किसी और से। उसके बाद ये दफा हज़फ हो जाएगी। अब ये वक़ूअ दूसरी जगह पे है, उसमें जो भी कानून के मुताबिक दफा जो आपने खुद बता दी है वो लगाई जाएगी और उसका अलग पर्चा ऑलरेडी दिया जा चुका है और उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। सॉरी 201 वाली बात को तमाम चीजें जी वो उन्होंने नाश को उस तरह नहीं छुपाया जो गवाही को छुपाना ये झूठ बोलना है, और जो बाकी चीजें वो कानून के मुताबिक हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। 2 मेंबर जो हमारा इंक्वायरी कमीशन है वो बाकी तमाम 3 वार्ड्स के जवाब भी देगा। जी एक एक करके शुरू कर ले, सारे इधर से शुरू करते हैं, सारों के जवाब मेरा वादा है, इसके बाद आपका सवाल। ये जो लास्ट वीडियो भी प्ले की थी इसमें हम देखा है हमने कि वो अली बिलाल इस वीडियो में प्रिजन वैन में मौजूद है। आप इसको मिस कर गए, ये नहीं बताया कि जब ये प्रिजन वैन में मौजूद था तो आपने किस वक्त किस टाइम इसको रिलीज किया यहाँ से। और दूसरा जो एक मेडिकल रिपोर्ट आई हुई है जिसमें कहा गया है अली बिलाल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आप उस पर मिस कर गए। क्या वो फेल थी या किसी के कहने पर बनाई गई थी, उसके बारे में भी एक्सप्लेन। मेडिकल रिपोर्ट MLC जी अच्छा, इन दोनों बातों का जवाब मैं दूंगा। फॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर भी हूँ, किंग एडवर्ड का सर का शागिर्द भी हूँ और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में प्रो बोनो फोरेंसिक से पढ़ाता हूँ। अच्छा, पहली बात ये आ गई कि जो आपने फरमाया कि ये वीडियो हमने खुद पेश की ना, जब ये वीडियो आती है वहाँ पे प्रिजन वैन थी, क्योंकि हमें किसी को मारने शारने का ना कोई प्लान था, ना तो वायरलेस थी कि किसी को कत्ल कर दो, ना पुलिस ये काम करती है, आपको पता है। अब उस शख्स को ये 4-5 बच्चे जो पकड़े गए। अच्छा, इसमें सॉरी डॉक्टर साहब मैं काट रहा हूँ, इधर मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा हमने प्लान ये बनाया था कि बहुत ज़्यादा लोग अरेस्ट नहीं करने। जब नंबर ज़्यादा होता जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो उस टाइम प्लान ये बना कि इनको पकड़ो और दूर ले जाके छोड़ दो। बिकॉज मसला ये था कि इतने पकड़ेंगे, हमारा सियासी काम नहीं है, हमारा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ें, अंदर करें सारा कुछ। उस टाइम हमारी एज अ पॉलिसी हमने कहा था पकड़ेंगे और दूर करके छोड़ देंगे। अब डॉक्टर साहब थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। मोहसिन इश्तियाक जो बाकी बंदे साथ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह CM साहब ने फरमाया, ये हमने उनको वहाँ से पिक किया। वहाँ पे उस प्रिजन वैन पे हमला होता है, प्रिजन वैन का ड्राइवर अकलमंदी करता है, उनको ले जाता है। फोर्ट्रेस तक जाके छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये वहाँ चले जाएं। 4 लोग इनमें से अलग रिक्शा लेके चले जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें कोई हमें रफाई जल्दी है, और उसको छोड़ता है वहाँ पे, इस शख्स को छोड़ता है जो कि गाड़ी के साथ टकरा जाता है। पहली बात। अब आते हैं मेडिकल लीगल रिपोर्ट के ऊपर। मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें आपको बताता क्या है डॉक्टर ये बताता है कि ये वुंड ब्लंट इंजरी से है या शार्प इंजरी से है या फायर आर्म से है। ये एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ तब पुलिस तशद्दुद पे लिखती है, और पुलिस के खिलाफ तशद्दुद पे लिखना चाहिए जब किसी खास जगहों पे आपको पता है कि पुलिस टॉर्चर करती है, रूलर फेंकती है, ये पुरानी टेक्निक्स थी जो खत्म हो चुकी है। इस मेडिकल रिपोर्ट में ब्लंट इंजरी है। वो एक इंजरी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ। गाड़ी लगी है, ड्राइवर बताता है, वो कोई भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, जितनी दूर वो गिरता है वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। उस ब्लंट इंजरी को सामने से लगा है, जो ये कहा जा रहा है कि उसको खास के नाजुक हिस्सों पे लगा है, वो भी आपको गाड़ी के साथ आपको मैच करके बाहर दिखा देंगे। ये एक्सीडेंट का केस है, इसमें किसी एक्यूज ने जो इस केस में है किसी को मार के पुलिस पे डालने की साजिश नहीं की है। वकूए के बाद इंसान घबरा जाता है, उसने बचाने की भी कोशिश की है। एक जगह पे वीडियो में पीछे जाके देखता है कि जिंदा है कि नहीं है, वो परेशान है, उसको अस्पताल तक पहुंचाता है। उसके बाद इसको जिस तरह यूज किया जाता है वो अनफॉर्चुनेट है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आइएगा, हमारे पास बहुत टाइम होगा, मैं पूरी मेडिकल रिपोर्ट खोलूंगा। मैंने डॉक्टरों से भी बात की है, जो इन्होंने की है, एज ए डॉक्टरों से बात की है, रात 2 बजे तक की है। आई एम सो ऑब्लाइज के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे मुकम्मल उस तक एक्सेस दी, और एक चोट का मैं आपको जवाब भी दूंगा और बताऊंगा। आगे सर, अब उनका सवाल जरूर, सर आपका सवाल होना चाहिए मेरे से वादा है, इनसे वादा, उसके बाद आपकी बात है। ये है सर, एक तो वहाँ सबसे पहले पैदा हुआ है, जो शक पैदा हुआ है वो सरकारी बयान से हुआ था कि जब प्रिजनर वैन में एक शख्स था, उसके बारे में सरकारी तर्जुमान साहब फरमा रहे थे कि ये तो जिस दिन वो रैली निकली जेल पर तहरीक की है, वहां से बात पैदा हुआ। खास तौर पर पुलिस की तरफ से जब ये मौकूफ आया पहले दिन, पुलिस की तरफ से कि आपके पास ये सारी एविडेंस है कि वो गाड़ी की टक्कर वाला कैमरा वहां पे बंद था,
जो टक्कर लगी है, जहाँ ये गिरा है बंदा, तो वो कहाँ है वीडियो, वो दिखाते ताकि उससे भी पता लग जाए। ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात ये है कि कबल अज वक्त जो ये आपने मौकूफ पेश किया था, उसके बाद आपने एमएस को भी मुअत्तल किया, उससे भी बात पैदा हो रहा है कि एमएस को हटा दिया है। एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ, एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ। एक आपके 10 सवालों में 10 का आपसे वादा किया ना, तो आपके सारे सवालों का जवाब देना मेरे में फर्ज है और मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली बात आप ये कह रहे हैं कि उस ब्लाइंड स्पॉट की वीडियो, उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मेरे साथ चलिए, टाइम डिसाइड कीजिए, सारे कैमरों की दिखाई जाएगी, एक एक चीज की जगह दिखाई जाएगी। नंबर 2, बहुत सारी स्टिल्स आपको नहीं दिखाई गई। मैंने कहा 31 कैमराज हैं, 31 अल्हम्दुलिल्लाह, और सेफ सिटी के कैमराज ठीक कराए जा रहे हैं, 31 तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत सारे और इदारों के 1600 कैमराज भी हमने शामिल किए हैं। खैर, कमिंग बैक टू दैट, ये जो वीडियो है ना जी, जिसमें सरकारी तर्जुमान PRO IG का मिस्टर नायाब है, हमने फैसला किया, मुझे वीडियो भेजी गई, मेरे बहुत सारे इस कमरे में प्यारे साफियों ने वीडियो भेजी कि आपकी वालदा को गालियां निकाली जा रही हैं। मेरा उसके ऊपर भी मैंने मौक़िफ़ था कि मैं एक दफा दूंगा, सच दूंगा। आपकी वालदा नेक खातून होंगी, आपकी वालदा ने आपको एक अच्छी तालीम दी होगी, मुझे यकीन है उनके पैरों के नीचे भी उसी तरह जन्नत है जिस तरह हमारी वालदाओं के नीचे। आप ये जो गालियां निकाल रहे हैं, क्या अपनी वालदा के सामने निकाल सकते हैं? क्या उनकी दी गई तालीम का हिस्सा है? और फिर याद रखिए, अपनी वालदा से पूछिएगा कि जो शख्स गाली देने पे मजबूर कर रहा है, क्या वो आपका दोस्त है जो आपको कह रहा है कि अल्लाह का नाम ले और सच बोले? अब तीसरी बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में MS सस्पेंड कर दिया, कोई नहीं, मेरी कल उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे मिला और उसके बाद मैंने उनसे सारी बात की। आपको तमाम तस्वीर शेयर की जाएगी, तमाम जगह दिखाई जाएगी। मैंने आपको अर्ज किया, मैं हाजिर हूँ। मुझे बहुत मीडिया वालों ने, दोस्तों ने कहा कि मीडिया पे बात करें, मैंने नहीं की। और जब मुल्जिम है उनसे भी मिलवा दी जाएगा। जी, अब आखिर में कुछ सवाल पूछना चाहते पहले वो पूछें। सर सारों के जवाब दूंगा, प्रॉमिस। जो आपने भी रिपोर्ट का जिक्र किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल लीगल का, उसमें ब्लड यूज हुआ है, ब्लड ट्रॉमा। जी जी, वो तो उस वक्त होता है जब कोई ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हो, कोई डंडा, ठीक है। तो ये तशद्दुद किसने किया, इसको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करें। अगर आपने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, तो फिर किसने तशद्दुद किया? पहले एक सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद दूसरा सवाल भी पूछना, आपको पूछने दूंगा। सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच। माइक को काइंडली बंद करके सबको आवाज आएगी। जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है, वो उस FIR को देखने के बाद डॉक्टर इंतहाई सिंसियरली करता है, और आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें कोई चीज कवर नहीं। इतनी लंबी मेडिकल रिपोर्ट किसी भी एक्सीडेंट की इतनी गौर से नहीं की गई। मैं शुक्रगुजार हूं हेल्थ डिपार्टमेंट का, उन्होंने ऑनेस्टली काम किया। 3 किस्म की इंजरीज याद रखिएगा, बेसिक बात बता रहा हूं। नंबर 1, फायर आर्म इंजरी, उसका एंट्री वूंड, एग्जिट वूंड, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। नंबर 2, इंसाइज्ड वूंड, गला कट गया या कोई ऐसी चीज हो गई। नंबर 3, वो कोई खुदा न खास्ता जो ऐसा फिजिकल वूंड जिसकी वजह से स्किन नहीं फटी या फट गई, और उसके अंदर ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा ये बताता है कि फिजिकल चीज जोर से लगी है, और इसमें जो जोर से लगी है उसकी वजह से स्प्लीन और लिवर डैमेज हुआ। ये ब्लंट ट्रॉमा इतना जोरदार था कि जब एब्डोमेन खोला गया, मैं अनफॉर्चुनेटली ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आपने पूछा है, मुझे उनके वालिद के दुख का एहसास है, लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा ये बताना फर्ज है कौम को कि वो जो ब्लंट ट्रॉमा था वो इतना शदीद था जो किसी डंडे शंडे से वैसे अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं नहीं आ सकता। ये तमाम मेडिकल रिपोर्ट ब्लंट ट्रॉमा दिखाती है। ये नहीं कह सकती, मैं फिर कह रहा हूं, ये पुलिस के खिलाफ जाएगी शायद बात, ये नहीं कह सकती कि ये एक्सीडेंट है, ये नहीं कह सकती कि ये पुलिस तशद्दुद है। ये जरूर कहती पुलिस तशद्दुद है अगर जिस्म के खास हिस्सों पे इसको मारा जाता है, जो आपको पता है पुलिस टॉर्चर करती है, जो मैंने पहले जिक्र कर दिया। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अगर इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे साथ चलिए, मैं उसको खोल के आपको बताऊंगा। अगला सवाल। दूसरा ये फरमाइएगा कि जिस आप बता रहे हैं कि आपने उसको आगे रिहा कर दिया, उसकी कोई CCTV फुटेज हमें मालूम है कि इस वजह से CCTV कैमरे खराब है, CM साहब ने आपके नोटिस भी लिया था, उसमें क्या पेशरफ है? तीसरा, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग, अच्छा पहले एक सारे सवाल आप पूछेगा, एक मैं इसी सवाल को आपको पहले बता दूं ना। आपने कहा कि उसको रिहा करने लिखाया गया, रिहा किया गया, दिखाया गया, तमाम कैमरास की तस्वीर आपके सामने पेश की जाएगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों बच्चे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, वो ड्राइवर है हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। अब उसके बाद आप आ जाइए तीसरे सवाल पे अपने।
इस पर भी इसके बाद मैंने क्लोज करना, मैं निकलूंगा, आप जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को गालियां पड़ रही है, आप पंजाब के सरबराह है पुलिस के, सीएम साहब मौजूद है, उनको गालियां पड़ रही है, तो हम तो आपके रहमो करम पर बैठे हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि हमें कोई मैं जवाब दे दूं, सामने दो एक बात जिसका जो दिल चाहता है जवाब देके खत्म कीजिएगा। आप लोग जवाब हुकूमत का काम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो किस्म की गालियां पड़ रही हैं, उसके बाद सीएम साहब इसका जवाब देंगे। दो किस्म की गालियां पड़ रही हैं, एक जात को कि क्या बिलाल कमियाना एक जालिम शख्स है, और उस्मान अनवर के फिर पेरेंट्स कैसे हैं। वो मेरा और उनका जाती मामला है, हम जो चाहें करें। जहां स्टेट को गाली पड़ेगी, इस रियासत को गाली देंगे, इस मुल्क को गाली देंगे, उस महकमे को गाली देंगे जिसने 1800 शहीद कराए हैं, उस इदारे को गाली देंगे जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा है, और उस एजेंसी को गाली देंगे जो दहशतगर्दी से आपको रोके खड़ी है, तो फिर स्टेट एक्शन में आएगी और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एक्शन में आएगी। एक सेकंड मैंने एक सेकंड मैं नहीं एक सेकंड मैंने पूछेंगे सर। मैंने निकलना है, आपको आईजी साहब अभी सारे जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे। अली बिलाल का एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अली बिलाल का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर इमरान खान पर मुकदमा 302 का दर्ज कर दिया। अभी तो जवाब दिया उस चीज का, दोबारा दे दो। अभी अच्छा मैं एक सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं, एक सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं। आपको डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सारे मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए हैं, सारे जवाब देंगे। दो चीजें हैं, पहली बात अभी हसन ने भी की, मेरी ज़ात की गाली का मामला है, डॉक्टर साहब ज़ात की गाली का मामला है, बिलाल कमियाना साहब की ज़ात गाली जो उनको दी जा रही है उसका मामला है। मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, लेकिन ये मुझे पता है यास्मीन राशिद साहिबा ने ज़्यादती की, उनको पता था, उनको पता चल गया था एक्सीडेंट है, उनको उसके बावजूद उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया, इमरान खान साहब को बताया, उसके बाद उन दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेज किया, हम सबको अपने सोशल मीडिया से जो करवा सकते थे वो करवाया, और उसके बाद एफआईआर के लिए उन्होंने एक और भी कॉल है जिस पे उन्होंने कहा कि जी नहीं, उनको भी किसी और उनके लीडर को भी कहा गया कि जी इसी तरह उन्होंने कहा नहीं जो मर्जी हो, मोहसिन नकवी पे एफआईआर हमने ज़रूर करानी है, ये हमारे हाथ चढ़ा है तो अब हमने ये काम करना है। तो मेरी सिर्फ इमरान खान साहब से भी यही अपील है कि अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ उसमें से झूठ वाला हिस्सा निकाल दें, हमें एटलीस्ट हमारी हद तक निकाल दें, अगर बाकी उन्होंने जो करना है वो करें। यास्मीन राशिद साहिबा क्योंकि हर चीज़ में बहुत क्लोजली उस शकील, क्या नाम, राजा शकील के साथ इन्वॉल्व थी, उनको सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कवर कराया। उसका मैं पुलिस टीम पे छोड़ता हूँ कि ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा मैं नहीं ये भूलने वाला चीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, और पता चल, अगर ना पता होता तो और बात थी, पता चलने के बावजूद ज़्यादती की है, जो मेरा ख्याल है इससे बड़ा क्राइम। भाई पॉलिटिशियन तो सादिक और अमीन है, आपको पता होने के बाद आप झूठ बोल रहे हैं, इसके बाद क्या रह जाता है। थैंक यू। बाकी से जाओ डॉक्टर साहब ने आपने भी फरमाया, आईजी साहब ने भी फरमाया कि यास्मीन राशिद साहिबा इस तरह का काम करती है, रियासत को गालियां देती है, ये नहीं कहा। उसके बाद आप ये देखें ना कि यास्मीन राशिद और वो तमाम लोग जिसमें मुसर्रफ जमशेद चीमो और दूसरे पीटीए के उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज? इसके जवाब ये करें सर, एक सेकंड सर, आराम से एक सेकंड, अब आपके जवाब पे आऊंगा। अगर ये माइक्रोफोन बंद करके ना एक मैंने आपसे वादा किया है, मैं शाम में बैठा हूँ, आपसे पूछूंगा, अगर माइक्रोफोन को बंद करेंगे फिर आपके पास माइक्रोफोन बंद करेंगे कहेंगे सर जो सवाल पूछते रहते साहब, आप माइक्रोफोन बेटी माइक्रोफोन बंद करो 2 मिनट के लिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी बेटा आप माइक्रोफोन ऑन करें, आप पूछ रहे जी। सर मेरे सवाल पे आता हूँ सर ये बता दें कि जैसे आप बता दें कि रोड एक्सीडेंट है, तो रोड एक्सीडेंट पे चीफ में तरीके के साथ इमरान खान पर मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, और अगर आप लोगों को आप जैसे कह रहे हैं कि चेंज कर दिया जाएगा तो पहले मुकदमा क्यों किया गया, और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 27 जगह पे जो निशान आए हैं वो आईजी साहब इधर आ जाइए, ये कुर्सी मैं किसके जवाब नहीं दूंगा, सबके। अच्छा अब पहले एफआईआर में 302 क्यों दी गई? जिस वक्त ये इतला आई है और एक मजलूम शख्स की डेथ की इतला आई है
اور पथराव और पुलिस तशद्दुद और तमाम चीज़ों की बात हुई है, तो मैंने आपको पहले इसका जवाब दे दिया। 302 ऐड हुई, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट है। जब हमें पता चला तो उसके बाद हम वो चीज़ कर देंगे। अब सर आपका सवाल। जी सर, आप फैसल खान जी। सर मैंने ये पूछा था कि जिस तरीके से आप देखते हैं, आपके पास बहुत सारी ऑडियोज भी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे भी चल चुकी हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमा, जिस तरह सीएम साहब ने बात की है, यास्मीन राशिद साहब टॉप ऑफ द लिस्ट है, बाकी भी 3-4 लोग हैं जो कि इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जो ना सिर्फ गालियां देते हैं बल्कि अदारों को गालियां देते हैं, रियासत को गालियां देते हैं। आप रियासत की हिफाजत करने के लिए बैठे, जिस तरह आपने फरमाया कि आपको गाली दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रियासत के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो सर आपने आज तक, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, रोज वहां पर गालियां दी जा रही हैं, आपको भी दी जा रही हैं, रियासत को भी दी जा रही हैं, लेकिन क्या मर्द और खातून की वजह से उनको नहीं डाला जा रहा? शुक्रिया शुक्रिया, बस हो गया जी। मैं आपके पास आता हूँ, सबके जवाब दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट की, मैं सबके जवाब दूंगा। हम अगर रहेंगे इकट्ठे, आप लोगों के साथ मैं 27-28 साल से हूँ, मैं किसके जवाब दिए बगैर जाऊँगा? अभी तो बाबर साहब ने सवाल पूछना है, कौन सा बंदा हमें छोड़ेगा यहाँ पे? देखिए, मैंने किसी सियासी शख्सियत का कोई नाम नहीं लिया। मेरे पास जो गाली है उसकी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों ने भेजी हैं। जिसने जो ज़बान इस्तेमाल की, जिस इदारे के ख़िलाफ़ की, उसमें कुछ मुख्तलिफ इदारे हैं। कुछ पंजाब पुलिस की पावर्स हैं, कुछ पंजाब पुलिस की पावर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका पीका ऑर्डिनेंस है और जो बाकी हैं सारे की चीज़ें, उसमें जो इदारा है उसके खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। कानून लाजिम बात है मर्द और औरत में तफरीक नहीं करता, लेकिन आज़मी बात है हमारा माशरा, ये माशरा और ये हमारे जो अक़दार हैं वो औरतों से डील करती हैं। कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होगी, बनती होगी, वो करेंगे जी। यहाँ से थोड़ा आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। हम मुस्लिम सीवर्ड को कवर भी करते हैं सारा दिन। क्यों गिरफ्तार नहीं होता एक शख्स जिसके वारंट गिरफ्तारी आते हैं? इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, इतने माशाल्लाह आप डॉक्टर हैं, साथ भी डॉक्टर हैं, मैना साहब बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह भले भले, आप बंदूक नहीं पकड़ते, आप जाते हैं 2 शल मारते हैं, बाहर आ जाते हैं। कहाँ गया कानून? अच्छा, इसमें जो डॉक्टर साहब की डॉक्टरी है, इसमें जो डॉक्टर साहब 75 पर्चे हैं, किसी एक में तो पकड़ ले उसको, पता तो चले पंजाब पुलिस है जनाब। जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए सर। अगर ये माइक्रोफोन बंद होंगे तो मेरी बात आप भी भाई बंद करेंगे।